Hello guys, myself Professor Bhavna Khimsara, and I am here with again a next lecture of Design and Analysis of Algorithm of Unit 3, the lecture third, and unit name is Greedy and Dynamic Algorithm. In our lecture 1 and 2, we have concentrated on greedy programming, its control abstraction, its principle, and some example like knapsack, activity selection, and job scheduling problem. Now, in this third lecture, we are going to concentrate on the dynamic programming. So, what is the principle of dynamic programming? So, the dynamic programming is an algorithmic paradigm that solves a given complex problem by breaking it into a sub problem. So, here your complex or bigger problem is going to be break into the smaller sub problems, and all that smaller sub problems is going to be solved, and the result of that sub problem is going to be stored. Now the question is, why to store a result of sub problem? So it is going to store so that if the same sub problem comes, so no need to recompute the same sub problem again. You can directly get a result where you have stored. So there are mainly two properties of a problem that suggests that a given problem can be solved using dynamic programming. So if any problem is given, how you can know understand, like, should I solve that problem using dynamic or not? So for that, the two properties must be acquainted by that problem. Very first is overlapping sub problem, and second is optimal substructure. So now what is meaning of these two, that we'll see. So very first is a optimal sub problem. So it is nothing but it is a dynamic programming is mainly used when solution of the same sub problem are needed again and again. So when you understood that whatever the problem you are solving and you are able to divide it in a sub problem and solve the smaller sub problem, and that sub problem is coming again and again, and you need the solution of that same sub problem again and again, so that time it is a perfect way to solve it using a dynamic programming. Again, in a dynamic programming, computed solution to the sub problem are stored in a table, so this won't have to recompute it. Now second property is a optimal substructure. So it is nothing but when a given problem has optimal structure substructure property, if the optimal solution of a given problem can be obtained by using optimal solution of its sub problem. Okay, its meaning is whatever the problem you are dividing in a sub problem, and if that sub problems are having a optimal solution, then the original solution will obviously the optimal. तो आपका original solution as well as उसके जो सब प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व किया है, ये सारे सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, ऑप्टिमल होने चाहिए. So it is called as a optimal substructure property. Again, there is a one main principle of optimality which is used by dynamic programming, which is nothing but dynamic programming is a technique for finding an optimal solution. So as greedy is used to find the optimal solution, same dynamic programming is also used to find the optimal solution of a problem. So the principle of optimality applies if optimal solution to the problem always contain optimal solution to ऑल सब प्रॉब्लम्स. जो मैंने ऑलरेडी पहले इसमें आपको शॉर्ट में बताया था वही चीज वापस आई है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम बोल सकते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, ये तभी बोल सकते हैं अगर उसके जितने भी सब प्रॉब्लम है, जितने भी पार्ट्स है, उन सबका सॉल्यूशन भी क्या है, ऑप्टिमल है. सो योर ओरिजिनल प्रॉब्लम विल आल्सो गेट दैट it is also a optimal solution, and this is called as a principle of optimality. Now we are going to again see some of the examples how to solve it using the dynamic programming. In greedy, we have seen the fractional knapsack, how to solve the fractional knapsack. And we know there are two parts of knapsack types, fractional as well as 0/1. So 0/1 knapsack, we are going to solve it using a dynamic programming. So here again, they have given like there are n objects are given, and with every ith object a weight is associated which is non-negative, means greater than 0,
and every object is associated a profit with it, means every object have a two thing, weight as well as profit. And knapsack has a capacity which is given, that is a m, and the object that you have to consider, it will be equal to 1. 1 means you are putting that object into the knapsack. If object is placed in the knapsack, अगर object को आपने knapsack में place किया तो उस object को हम क्या लिखते हैं 1. अगर आपने उस object को place नहीं किया knapsack में, so we are going to say that that object value is equal to 0. And here our main problem is we have to optimize it, means we have to find out a solution which is maximize the profit. ऐसे ही object को select करना है जिस ऑब्जेक्ट के प्रॉफिट का समेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए. बट हियर द कंडीशन इज दैट इट्स सब्जेक्ट टू दैट वॉट एवर द ऑब्जेक्ट यू हैव सिलेक्टेड, its weight summation should be less than equal to the m, means less than equal to the capacity of knapsack. Now to solve the knapsack problem 0-1 using dynamic programming, so we have to use a formula, two formulas, SI1. So SI is a pair, profit and weight, simple. And SI of 1 is again a pair of profit and weight, where this P is obtained by the profit that you are considering with a previously generated profit. यानी प्रीवियसली स्टेप में आपने जो भी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है उसमें अभी जो नया वाला आप ऑब्जेक्ट डालने वाले हो उसका प्रॉफिट में ये वाला प्रॉफिट ऐड किया जाता है. ओके, एंड सेम वेट इज आल्सो गेट एडेड. So once I explain the example, you will get understood this formula very properly. So let's see the example. So here example given is like we have a three objects, 1, 2 and 3, and its profit is 1, 2 and 5, and its weight is 2, 3 and 4. So ये sequence में object दिया है. So here number of object is 3 and the capacity of knapsack given is the 6. तो m की वैल्यू यहाँ पे 6 दी हुई है. अब यहाँ पे हमको इसको कोई भी सीक्वेंस में लगाना नहीं है, जैसे हम लोगों ने ग्रीडी में किया था कि प्रॉफिट और वेट का रेशियो निकाला था और हाईएस्ट रेशियो पहले कंसिडर किया था. नो, देयर इज नो रूल विच आइटम यू आर गोइंग टू कंसिडर फर्स्ट. तो जिस सीक्वेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिए है उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, उसको कंसिडर करते जाना है. And then at the end I will explain like how you are going to find out a solution. So at very first stage, as there is nothing in a knapsack, so this is a profit and weight pair. तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसके लिए प्रॉफिट की भी वैल्यू 0 हो गई और वेट की भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. अब हमको S of 1 निकालना है. तो S of 1 निकालने के पहले हमको S0 of 1, S0 of 1 हम निकालेंगे. बट हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्टेन, it will be obtained by adding a profit and weight of first object. तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखो कि ये 0 वाला पोजीशन था, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट अभी हमको नैपसैक में डालना है, हम सोच रहे हैं डालने का. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो प्रॉफिट है और वेट है वो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे इसके प्रॉफिट और वेट में. तो अब अगर हम देखें हमारे एग्जाम्पल में, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रॉफिट कितना था 1 एंड वेट कितना था 2. तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 में मतलब प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट ऐड कर दिया 1, तो आंसर 1 आ गया. 0 के अंदर वेट जो था 2 ऐड किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 2. सो नाउ S01 वी हैव गेट. अब ये S0 से लेके S01 तक का एक ग्रुप हो गया. अब इसमें से हमको वापस कौन सा निकलना है, S1 से लेके तो S11 तक का. तो S1 कैसे ऑब्टेन करेंगे, इट विल बी ऑब्टेन बाय मर्जिंग S0 एंड S01. तो इसमें प्रीवियस स्टेप में जो S0 एंड ये जो बाद में प्रॉफिट एंड वेट कोई ऑब्जेक्ट का ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिली है S0 of 1, तो इन दोनों को मर्ज किया जाता है एंड यू विल गेट अ नेक्स्ट वैल्यू. तो मर्ज करना है मतलब क्या, ये वैल्यू और उसके बाद ये वैल्यू को सेट में ऐड कर दिया. तो S1 में क्या आ गया, 0 0 आ गया एंड 1, 2 ये दोनों चीजें आ गई. नाउ S11 S11 मतलब क्या कि ये जो प्रीवियस वैल्यू है इसके अंदर अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे लिस्ट में है उसका प्रॉफिट और वेट, इसके प्रॉफिट और वेट में एज वेल एज इसके प्रॉफिट और वेट में हमको दोनों में ऐड करना है. तो अब अगर हम देखते हैं कि जैसे
नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है जो हमको कंसिडर करना है? सो दिस इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो जिसका प्रॉफिट कितना है, 2 है एंड 3 है, जिस इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले जो सेट है इसके अंदर हमको क्या ऐड करना है, वैल्यू कौन सी ऐड करनी है? सेकेंड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट कितना था, W, और वेट कितना था, 3। तो ये प्रॉफिट एंड वेट ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज सेकेंड, मतलब दोनों सेट में दोनों वैल्यूज में ऐड करना है। तो अगर 0 + 2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमको 2 मिल गई, 0 + 3 करेंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू 3 मिल गई। ओके, लाइकवाइज सेम जो हमारा 2 और 3 का जो प्रॉफिट है, तो इसमें भी हमने 1 + 2 कर दिया और 2 + 3 कर दिया, तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया 3 और 5। सो लाइकवाइज वी गेट द नेक्स्ट वैल्यू S1 and 1। सो नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू गो विथ S2। S2 के लिए हमको क्या करना है, हमेशा याद रखो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, S1 निकालने के लिए S0 एंड S01 ये दोनों वैल्यूज को क्या किया था, मर्ज। तो लाइकवाइज अगर हमको S2 निकालना है तो हमको क्या क्या चीज मर्ज करना पड़ेगा, S1 ये दोनों चीज को मर्ज करना है। यानी क्या, S1 यानी क्या, ये दोनों वैल्यूज हो गई, और S11 यानी क्या, ये वैल्यू हो गई। तो 1 2 3 एंड 4 ये वाली वैल्यूज को हम मर्ज करेंगे। मर्ज करते वक्त हमको और एक कंडीशन ध्यान रखनी है जिसको हम बोलते हैं पुर्ज। मर्जिंग एंड पुर्जिंग ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होता है। सो पुर्जिंग मतलब क्या, कि जब आप मर्ज कर रहे हैं तो अगर कोई ऐसा वैल्यू आपको मिलता है जिसका प्रॉफिट उसके प्रीवियस वाले कोई भी जो सेट आपने लिया है उसके उसके प्रॉफिट से इसका प्रॉफिट ग्रेटर है लेकिन वेट कम है, तो प्रीवियस वाला ऑब्जेक्ट हमको क्या करना है, रिमूव करना है, पुर्जिंग कर देना है। सो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि हमको S2 जो है ये हमने मर्ज किया S1 एंड S11। तो ये सारे वैल्यूज जो है ये हमने साथ में मर्जिंग कर दिए। अब सॉरी ये S2 था, तो ये S2 हमको मिल गया है। अभी S2 of 1 it will be obtained by adding profit and weight of third object to S2। तो ये S2 of 1 यानी जैसे ही यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में हम आगे का 1 लगाते हैं, मतलब हमको नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है इसको ऐड करना है। तो अभी नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रॉफिट एंड वेट हम लोग देखते हैं कि क्या है वो। तो इफ यू सी द थर्ड ऑब्जेक्ट, तो इसका प्रॉफिट है 5 एंड इसका वेट है 4। तो प्रीवियसली जो S2 सेट जनरेट हुआ है उसमें हर ऑब्जेक्ट के प्रॉफिट में थर्ड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट और हर ऑब्जेक्ट के वेट में थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो हम ऐड करेंगे, दैट इज 5, 4 ये वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे। सो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो ये जो सेट है इस सेट में हमको क्या करना है कि थर्ड वाला ऑब्जेक्ट जो है उसका सॉरी ये वाला जो सेट है इससे ये वाला सेट जनरेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हर ऑब्जेक्ट में थर्ड ऑब्जेक्ट का जो प्रॉफिट है दैट इज 5 एंड उसका जो वेट है वो ऐड करेंगे। तो जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में 0 + 5 कर दिया, अगेन 0 + 4 कर दिया, सो वी गॉट दिस वैल्यू। अगेन नेक्स्ट 1 के साथ 5 को ऐड कर दिया, 2 के साथ 4 को ऐड कर दिया, सो वी गॉट अ 6, 6। अगेन लाइकवाइज 2 के साथ अगेन 5 ऐड किया, 3 के साथ 4 ऐड कर दिया, सो वी गॉट अ वैल्यू 7, 7। एंड हियर 3 के साथ 5 ऐड किया एंड 5 के साथ 4 ऐड कर दिया, सो वी गॉट अ वैल्यू दैट इज 8, 9। अब ये वैल्यू मिल गई। अभी हमको S3 का सेट जनरेट करना है। तो हमको पता है कि S3 जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ने वाला है, ये जो S2 है ये और S2 of 1 ये दोनों वैल्यू को क्या करना है, हमको इन दोनों वैल्यूज को मर्ज करना है। ओके, अब मर्जिंग जब हमने किया तो क्या आ गया, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 5 यानी ये वैल्यूज हमने ऐड कर दिए। इसके साथ ये आगे वाले वैल्यूज क्या कर दिए हम लोगों ने, डाल दिया। अभी हमने तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर कर लिए, ऑब्जेक्ट 1, 2 एंड 3। अब इसके आगे की स्टेप क्या करनी है हमको। सो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है ये पहली वैल्यू हमको क्या बताती है, हर इसमें फर्स्ट वैल्यू इज गिविंग
हर एक सेट की फर्स्ट वैल्यू क्या बताती है, प्रॉफिट डिनोट करती है। ओके, एंड सेम लाइकवाइज जो सेकंड वैल्यू है हर इसमें, ये क्या डिनोट कर रही है हमको, वेट डिनोट कर रही है। ओके, और अभी हमको पता है कि हमको जो वेट दिया है, यानी एम की जो वैल्यू है, नैपसैक की जो वैल्यू है, वो यहाँ पे क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका वेट 6 से ग्रेटर है, वो ऑब्जेक्ट तो हम नैपसैक में कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, पुर्जिंग में डिलीट हो गए। तो पुर्जिंग में एक रूल क्या है, ऐसा सेट जिसका वेट, ओके, जिसका वेट नैपसैक के वेट को एक्सीड कर रहा है, ग्रेटर कर रहा है, उन ऑब्जेक्ट को निकाल दो, उनको कंसिडर मत करो आपके सॉल्यूशन में से। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, लास्ट वाले जो दोनों सेट थे, दोनों पेयर थे, दे गेट डिलीटेड एज इट एक्सीड द वेट ऑफ अ कैपेसिटी ऑफ नेक्सैक। ओके, 6 से ग्रेटर है, इसके लिए हमने निकाल दिए। इसके अलावा और एक पेयर है 3,5 विल बी डिलीटेड बाय अ डोमिनेंस रूल। डोमिनेंस रूल यानी क्या होता है कि जैसे अगर हम देखते हैं अभी इसके प्रीवियस इसमें, जैसे 3,5 अगर मैं इसको इसके आगे जो आने वाली पेयर है इसके साथ कंपेयर किया कि ये ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट जो है इससे ग्रेटर है। ओके, इन दोनों का अगर हम प्रॉफिट कंसिडर करते हैं तो इसका प्रॉफिट इस प्रॉफिट से क्या है, ग्रेटर है। लेकिन अगर मैं वेट कंपेयर करती हूँ अभी, दोनों का हम क्या कंपेयर करते हैं अभी, वेट कंपेयर करते हैं, तो इसका जो वेट है इस ऑब्जेक्ट का, ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के वेट से ग्रेटर है। यानी ये वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट प्रॉफिट भी कम दे रहा है हमको इस ऑब्जेक्ट से, और उसका वेट भी क्या है, ज्यादा है। तो इसको हमको नैपसैक में कंसिडर करना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि नैपसैक में डालने के लिए वेट भी ज्यादा लग रहा है, प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट को डालने के बजाय हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को डालेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इससे इसका प्रॉफिट ग्रेटर है, लेकिन इससे इसका वेट भी क्या है, ग्रेटर है। अगर प्रॉफिट एंड वेट दोनों भी ग्रेटर है तो दोनों ऑब्जेक्ट रहेंगे। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन वेट क्या है, लेस है, तब ये वाला ऑब्जेक्ट, पहले वाला ऑब्जेक्ट जिसका वेट ज्यादा और प्रॉफिट कम है, वो रिमूव हो जाता है। इसको बोलते हैं डोमिनेंस रूल। सो देयर, उसको हम बोलते हैं पुर्जिंग। पुर्जिंग मतलब जिसमें जिसका वेट नैपसैक की कैपेसिटी ज्यादा है उसको डिलीट करो, प्लस ऐसा कोई पेयर जो जिसका प्रॉफिट कम और वेट ज्यादा है किसी दूसरे पेयर से, तो उसको भी रिमूव करो। सो दीज टू रूल्स इज कॉल्ड एज अ पुर्जिंग रूल। अब ये निकालने के बाद हमारे पास वो वैल्यू जो है, ये भी निकाल दी, तो फाइनली हमारे पास जो S3 बचा है, इसमें पेयर आ गए 0, 0, 1, 2, 2, 3, 5, 4 एंड 6, 6। अब इसमें से हमको निकालना क्या है कि एग्जैक्टली कौन से ऑब्जेक्ट है जो हमने नैपसैक में पुट किए, वो अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है, लास्ट वाला पेयर ले लो। ओके, और लास्ट वाला पेयर जो है, ये जो लास्ट वाला पेयर है, ये चेक करो कि इसको किसने जनरेट किया, कौन से सेट ने जनरेट किया। तो S3 के अंदर तो ये था ही। ओके, तो S3 के अंदर था, लेकिन क्या ये S2 के अंदर भी था क्या, वो हम चेक करेंगे। ओके, ये वाला पेयर 6,6 किसने एक्चुअल में जनरेट किया। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि S3 जो है इसमें 6,6 जो है ये दिख रहा है। अब ऐसे ही मैं ये S2 जो है, S2 के अंदर चेक करूँ तो यहाँ पे है क्या, 6,6, नो। तो S2 ने जनरेट नहीं किया है, तो मतलब ऑब्वियसली ये S1 ने भी जनरेट नहीं किया है। तो इसका जो ओरिजिनेटर है जिसने इसको जनरेट किया है वो कौन है, S3 है, मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो हमको पूरा के पूरा लेना है, क्योंकि लास्ट की जो पेयर है ये जनरेट ही S3 ने की है। तो अगर ये S3 है, इसका मतलब इट इज डिनोटिंग अ थर्ड ऑब्जेक्ट। तो थर्ड ऑब्जेक्ट हमको पूरा नैपसैक में डालना है। अब नैपसैक में हमने थर्ड ऑब्जेक्ट डाला, तो थर्ड ऑब्जेक्ट का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 5 था, और वेट कितना था, 4 था। ओके, एग्जाम्पल में आप चेक करना। तो अब हमको क्या करना है, ये प्रॉफिट और ये वेट, ये जो हमारी पेयर है 6,6, इसमें से माइनस करना है। तो 6 - 5 कर दिया, 6 - 4 कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1,2। तो अब हमको नेक्स्ट क्या चेक करना है कि अब ये 1,2 जो है ये किसने जनरेट किया है। तो अब हम लोग चेक करने को जाते हैं, ओके, कि इस 1,2 इसका ओरिजिनेटर कौन है। अब यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि 1,2 जो है ये वाली पेयर S3 के अंदर है,
1,2 ये पेयर, ये S2 जो है इसके अंदर भी है। तो ये दोनों के पास है। अब हम चेक करेंगे कि इसके प्रीवियस में S1 के पास भी था क्या। सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने चेक किया कि S1 जो है इसमें भी 1,2 पेयर था, मतलब इसका ओरिजिनल जनरेटर ना ही S3 है ना ही S2 है। ये कौन है? S1 है, क्योंकि S0 में तो कोई पेयर था ही नहीं, 0,0 था। तो 1,2 ये ओरिजिनली किसने लाया है? S1 ने। तो S1 मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट अभी हम लोग कंसिडर करेंगे? फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया? it is generated by S1, so we are considering the first object। and first object जो है उसका weight था 1 और profit क्या था यहाँ पे? 2। तो अब ये वाली पेयर जो है, ये जो है इसमें से हमने प्रॉफिट 1 माइनस कर दिया और वेट माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? 0,0। तो अभी हम फाइनल 0,0 स्टेज पे पहुंच गए, तो अभी और कुछ चेक करने के लिए बचा ही नहीं है। तो इससे हमको पता चल रहा है ये वाले एग्जाम्पल से कि X1 को हमने ले लिया है, X3 को ले लिया है और हमको 0,0 मिल गया है। इसका मतलब S2 ने कोई भी पेयर को जनरेट नहीं किया है। इसके लिए X2 जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? नैपसैक में पुट नहीं करना है, इट्स वैल्यू इज 0। सो इसके लिए टोटल हमारे पास X3 एंड X1 है। तो टोटल अगर हम दोनों का प्रॉफिट प्लस करते हैं, इसका प्रॉफिट कितना था? 5, जो आपको टेबल में, स्टार्टिंग के टेबल में मिल जाएगा, और इसका प्रॉफिट कितना था? 1। तो इसके लिए टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हो गया है? 6 हो गया है। और ऑब्जेक्ट 1 and 3 इज सिलेक्टेड टू पुट इनटू द knapsack। I hope you understood this example. In next lecture, we are going to study the example of binomial coefficient.